संडे। वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। मेरे गेस्ट आ गया, एक ही गेस्ट आए हैं। दूसरे गेस्ट का ना कोई और अदर पार्टीज था और भी उनका एंगेजमेंट था, तो हम लोगों ने तो लास्ट मोमेंट पे किया ना, इसीलिए नहीं आ पाए। লিসার সাথে ওরা একই তাইওয়ানে, সব তাইওয়ানের, ও তাইওয়ানে, ওরা একই। আমি এখানে এসে অ্যাড্রেসটা চেক করছিলাম, তারপর দেখলাম যে না, এই পায়ের ছবি তোলার দরকার নেই, ঠিক জায়গায় এসেছি। এখানে বলি ও নাও কিনতে পারবে, কার্পেটই তো কার্পেট। আর দেখো আমরা পড়ে গেছি, তুমি নাও। ঠিক আছে, বসো বসো। বন্ধুটা কোথায়? স্নানে গেছে। ও আচ্ছা বাবা, এইসব কি? কিছুই না, ঘরেই ছিল। ওরে বাবা, কত কিছু। ভাগ্যিস আমি কেক বানাইনি। শুধু কেকটাই কেনা, বাদ বাকিগুলো সব ঘরেই ছিল। ও বাহ, থ্যাংক ইউ। শুধু কেকটা ভাবলাম যে ফ্রেশ কিনে আনি। কলকাতায় গেছিলাম তো পুরো জানুয়ারি, ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি। কি দিয়ে কলকাতা যাওয়া হলো? আমি একটু বড়ি, একটু কাসুন দিয়ে আনাতাম। কাসুন দিয়ে কেন পাই? এই মঞ্জুটাকে তো এসেই এই করলাম, মেসেজ করেছি যে এসে করলে কি হবে? আমরা মানে কি জানেন তো, আমি যাচ্ছি তোমার বাড়িতে। কি হলো কেসটা, মানে সে টিকিট কাটা ছিল গত বছর, কিন্তু গত বছরে টিকিট কাটা ছিল, সে তো যাওয়া হলো না। তারপরে এখানে মানে সেই যাবো কি যাবো না বুঝতে পারছি না। ফ্লাইটে লাগবে কি তোমার? ফ্লাইটে যাবো কি যাবো না বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ। তারপরে তো ভাগ্যিস মানে ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হলো না, কারণ আমাদের ল্যাব থেকে একটা ছেলে ও তাইওয়ানে যাবে করে, ওর তো ক্যান্সেল হলো কতবার। তারপরে আরেকটা পাকিস্তানের ছেলে ছিল, ও পাকিস্তানে যাবে করে, ওর ফ্লাইট বহুবার ক্যান্সেল হলো। শুধু কলকাতায় যাওয়াটা মানে খুব আনসার্টেন। তার জায়গায় এখানে টেস্ট করেছি, তারপর ওখানে গিয়ে আবার দিল্লি এয়ারপোর্টে টেস্ট করলো। It's just you look in Google Maps, it's all jungle. There's nobody. There's a lot of abundant wilderness. আসবে, করার। আর ফ্লোরিডাতে কি সারা বছরই তো গরম, ওখানে অ্যাক্টিভ থাকে সব অ্যানিমালস গুলো। এই ইউরোপে এরকম কিছুই দেখা যায় না, শুধু ওই দু একটা খরগোশ ছাড়া মানে রেপটাইল তো দেখাই যায় না। ইউরোপে কোর্স করেছো না? ইউরোপে জার্মানিতে ছিলাম ওই পিএইচডি সময়, কারণ আমি গিয়েছিলাম ড্যাট স্কলারশিপ পেয়ে গেছিলাম। করেছিলে পিএইচডি? পিএইচডি ইন্ডিয়াতে, ইউনিভার্সিটি অফ হায়দ্রাবাদ। আমরা এইচসিও বলতাম, এইচসিও, হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, ওটা দুরকম। ওসমানিয়াও আছে। ওসমানিয়া আছে। ওসমানিটা কেমন? ওসমানিয়া কোনোদিনও যাইনি, কিন্তু ওটা বহু পুরনো ইউনিভার্সিটি। ওটা ভালো ছিল এক সময়, এখন যাই না। এখন খারাপ না, কিছু ডিপার্টমেন্টস আছে, যেমন বটনি, ইটস কোয়াইট গুড। আর ওসমানিয়া একটু দূর আছে, আমাদের এইচসিউটা থেকে অনেকটা দূর। কোনোদিনও যাইনি, কিন্তু ওসমানিয়া প্রচুর ছেলেমেয়েরা আসতো, মানে যাতায়াত করে গিয়েছিল। মধ্যে রিভিউয়ার্স পেপারের জন্য দিতে হয় না, তো হায়দ্রাবাদ ভাল লাগতো থাকতে, বাঙালি খাবার টাবার পেতে? না, হায়দ্রাবাদ খুব ভালো জায়গা। ওসমানিয়ার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট বটনি করতো আমার, সো আই গিভ হার নেম। হ্যাঁ, ওই ভদ্রমহিলা সবিতা রানী ভদ্রমহিলা আমার ওই সব সিএসআই স্কলার ছিলাম তো, আমাদের ওই সিএসআই এর ওই হতো ওই অ্যানুয়াল রিভিউ, ওটা হলে আবার ফেলোশিপ পাওয়া যাবে। ও এইসব উনি আসতেন, উনি এসে রিভিউয়ার হিসেবে আসতেন, আর স্যার খাওয়াতে নিয়ে যেত লাঞ্চ। যখন রিভিউজ গুলো ফিরে আসে তখন আমি বুঝতে পারি কোনটা ইন্ডিয়া থেকে, কোনটা ইন্ডিয়ান রিভিউয়ার, ইংলিশ থেকে। You can tell. But she's quite positive and she gives constructive review that she's going to give me a free pass. বেশ ভালো কনস্ট্রাকটিভ রিভিউজ দেয়, so it's good. আমার এত ভালো লেগেছিল, মানে আমি বলবো হায়দ্রাবাদ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিটিজ। অনেক প্রবলেমও আছে, কিন্তু মানে বাঙালিদের পক্ষে হায়দ্রাবাদ হচ্ছে খুব ভালো, কেননা খাবার দাবার এত ভালো আর সস্তা। বিরিয়ানিতে জমে না, हैदराबाद बिरयानी जो मिलेगी तो बंगाली होटल प्रचुर। आज का व्लॉग थोड़ा हिंदी बांग्ला मिला के है।
होपफुली आप लोग माइंड नहीं करोगे। अभी पूरा घर का ऐसे हाल है, घर क्लीन है, अच्छा करके अरेंज किया हुआ है। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ मैंने संडे लंच के लिए गेस्ट के लिए क्या क्या नॉन वेजिटेरियन मेनू किया। ये है मसूर का दाल, प्याज और कलौंजी तड़का लगा के, इसका भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं दे दूँगी। ये है बेगुनी, इसका भी रेसिपी है। ये है शुटकी माछ, बॉम्बे डाक या लोइट्टा फिश। ये है चिकन करी, इसका भी रेसिपी दे दूँगी। ये स्ट्रॉबेरी है, ये उसने लेके आया था फांटा, कुकी एंड क्रीम, चीज़ केक, बिस्किट, ये सब है। ये है फिश हेड पुलाव आप बोल सकते हो, बंगाली मुड़ी घंटो। ये है कुलेट चाटनी, ये है सैलड, सैलड में सिर्फ खीरा रखा, और ये है रसमलाई। रसमलाई हस्बैंड खरीद के लेके आए थे। आज हम लोगों ने ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया है। यहाँ पे राइस रख दिया है, टेबल को ना खाली खाली रखा है कि हम सबका फेस देख सके, गपशप कर सके। टेबल को क्लटर फ्री रखा है, और ऐसे काउंटर पे यहाँ पे सारे लोग लगा देते हैं। अभी बेगुनी का बैटर तो मैंने बना दिया, अभी हस्बैंड बेगुनी फ्राई कर रहे हैं। तो ये है रीड डिफ्यूज़र। आज हस्बैंड जब क्लीन कर रहे थे, आज अभी तो संडे है, संडे का 7:28। तो अभी हमारा गेस्ट चले गए हैं। नेक्स्ट पार्टी जो होगा अभी इस महीने तो नहीं होगा, शायद नेक्स्ट मंथ भी नहीं हो। तो देखते हैं, हमारा जो साउथ इंडियन गेस्ट है और भी अलग अलग जो गेस्ट है सबको लेके नेक्स्ट पार्टी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्टी जब होगा तब आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करूँगी। और ये जो रीड डिफ्यूज़र आपने देखा ना, ये घर पे रखना बहुत अच्छा लगता है, ये इंडिया पे भी मिलते हैं। जब फर्स्ट हमारे घर पे पार्टी हुए थे हस्बैंड का ऑफिस कॉलीग को लेकर, तब एक यूपी नहीं बोलूँगी, एक कुमायूनी फ्रेंड था हिमाचल का। मतलब हिमाचल का दो कल्चर होते हैं, हिमाचली, कुमायूनी। तो वो कुमायूनी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड है हरिद्वार का। तो रीड डिफ्यूज़र दिए थे, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छा। इधर आते ही ना मेरा एक तेलुगु और वो जो कुमायूनी, दो अच्छा फ्रेंड बन गए थे। तब इतना बंगाली फ्रेंड नहीं थे अब की तरह, तब नई नई आई थी ना, आहिस्ता आहिस्ता बंगाली से मुलाकात हो रहा था ऐसा। तो उसने रीड डिफ्यूज़र दिया। आज हस्बैंड पूरा वैक्यूम कर रहे थे, डस्टिंग कर रहे थे सुबह सुबह, और मैं तो कुकिंग कर रही थी। तो आज बोला देखो क्या मिला। मैंने बोला अरे ये तो बोल उन लोगों का नाम लेके कि उन लोगों ने दिए थे। बोला हाँ ये बात है। मैंने बोला हाँ ये उन लोगों ने दिए थे। तो एक रीड डिफ्यूज़र जहाँ पे रखो ना, इतना अच्छा, इतना साल बाद, सोचो करीब 10 साल बाद इतना अच्छा एक एरोमा है ना। मतलब मैंने जो स्मेली चीज़ें बनाई, चिकन, फिर फिश हेड, फिर ड्राइड फिश, कोई घर पे आके घुस के ना आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतना साल बाद, शायद मैं 15-20 साल बाद फांटा पिया। फैंटा आप जो भी बोलो जो ऑरेंज ड्रिंक होते हैं कोलकाता पे मिलते हैं, कितना साल बाद पिया। मतलब देखते तो है पर कभी लेते नहीं हैं। बिस्किट लेके आए थे, और ये बिस्किट और फैंटा उसके घर पे ही था, और कुकी क्रीम चीज़ केक लेके आए थे। इतना औसम है ना। मैं तो इतना मीठा पसंद नहीं करती, पर फिर भी मैंने खाया। दो पीस अभी है, आपको दिखाते हैं, रुकिए। ये है कुकी क्रीम चीज़ केक। और अभी क्यों व्लॉग कर रही हूँ, गेस्ट जाने की बात का पिक्चर। गेस्ट जाने के बाद कैसे दिखते हैं घर, वही आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ व्लॉगिंग। और मेरा ना देखो नेल्स ऐसा है अभी। क्या हुआ, मैंने सोचा हम टर्मरिक पाउडर तो कुकिंग में देते ही है, तो क्लीन हो, जितना भी नेल्स क्लीन हो, पर येलो बड़ा बड़ा नेल बहुत याकी एंड डार्टी दिखते हैं। जितना भी क्लीन हो, आप ऐसे ऐसे करके अंदर से आप क्लीन कर रहे हो, कोई तो देख नहीं रहा है।
तो इससे बेहतर मुझे लगा बड़ा बड़ा नेल्स हो, नेल पॉलिश पहनने का टाइम नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने नेल्स छोटा छोटा करके काट लिया। आज शायद नेल पॉलिश पहनूंगी, नहीं तो कल पहनूंगी, बट इट्स ओके, मतलब इट्स ओके, नेल पॉलिश लगाने का टाइम ना भी मिल सकते हैं तो कोई बात नहीं। और पहले था ना, ये तय था कि हमारे घर पे 5-6 जन गेस्ट आएगा, तो ऐसा मेनू सेट किए थे। फिर देखा कि एक ही बंगाली गेस्ट आ रहे हैं, तो मेनू थोड़ा चेंज कर लिया, तो इसीलिए उसने बहुत खुश होके खाया। और जो ड्राइड फिश है ना, बॉम्बे डाक, शुटकी माछ, वो शुटकी माछ उसने खाया। मैंने पूछा उसको, सब कुछ था कि सब कुछ ही उसको दे सकती थी, क्योंकि हमारे लिए तो लेफ्ट ओवर है ही। तो उसको मुड़ी घंटो, जो फिश हेड का, रोहू फिश का हेड का है, देके वो मुड़ी घंटो दे दिया, शुटकी माछ दे दिया। और उसने बोला मसूर का दाल दे दो। मैंने बोला चिकन लो, राइस लो, चटनी लो, दाल लो, फिर बेगुनी जो है वो लो। बोलते हैं नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, मसूर का दाल इतना टेस्टी हुआ। बौदी बोलते हैं हमारे में, भाभी नहीं बोलते हैं, मतलब बहू दीदी, तो बौदी बोलते हैं। तो बौदी तुम दाल दे दो और शुटकी माछ और मुड़ी घंटो। और कल हस्बैंड का एक फ्रेंड ने टैम्पा पे हस्बैंड को बुलाए थे। टैम्पा है ऑरलैंडो का बाजू का जो पास वाला शहर है, बहुत सारा स्ट्रॉबेरीज दिया। उसका स्ट्रॉबेरी फार्म है खुद का, फ्रेश स्ट्रॉबेरी, वो भी थोड़ा सा उसको दे दिया। स्ट्रॉबेरी देके मैं कुछ बनाऊंगी, शायद आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी मैं। गेस्ट जाने का बाद का घर का हालत, ये सब क्लीन करके डिशवॉशर लगा के, खुद भी मेकअप कुछ नहीं किया, लिपस्टिक उठा के फिर एकदम हेयर टाई करके फिर मैं सो जाऊंगी। कल रात को अच्छा करके नींद नहीं आया, क्योंकि हस्बैंड ने बोले थे कि संडे सुबह उठ के सब करेंगे, हम दोनों मिल के करेंगे, तुम टेंशन मत लो। फिर भी कुछ कुछ काम तो करना ही होता है, जैसे आप दाल को बॉईल करके रख दो, सब कुछ सब्जी चॉप करके रख दो। सिर्फ प्याज मैं चॉप करके नहीं रखती हूँ। फिश हेड को क्लीन करके रखो, ड्राइड फिश जो है शुटकी माछ उसको क्लीन करके रखो। ड्राइड फिश इंडिया पे कोई कोई जगह पे खाया जाता है शायद। अगर आप नॉन बंगाली कोई हो, ड्राइड फिश खाते हो, मुझे ज़रूर बोलना। कोई कोई ड्राइड फिश को पोचा माछ बोलते हैं, मतलब रॉटन फिश। रॉटन नहीं होते हैं, सन ड्राइड होता है। समुंदर के सामने, उड़ीसा पे बहुत जगह पे करते हैं, मैं जितना जानती हूँ। समुंदर के सामने जो रेत होते हैं ना, सैंड, उसके ऊपर फिश देके बॉम्बे डाक, मेनली बॉम्बे डाक ही हम लोग खाते हैं। सारे फिश का ही ड्राइड फिश होते हैं। फिश देके पूरा सन ड्राई करके फिर बेचते हैं। मुझे ना बहुत इंक्विजिटिवनेस है ये सब लेके, कि जैसे इंडिया पे खाया जाता है, बांग्लादेश पे खाया जाता है, ऐसे ड्राइड फिश दुनिया की और कोई जगह पे ज़रूर खाया जाता है। तो वो लेके गया शुटकी माछ, लोइट्टा शुटकी, लोटके शुटकी, लोटे शुटकी, लोइट्टा माछ, अब जो भी बोलो, शुटकी माछ। शुटकी मतलब, शुटकी बोलते हैं बंगाली में थिन को, रोगा, तो उसको बोलते हैं देख देख ये शुटकी है, मतलब ये ऐसे स्केलेटन टाइप या ऐसे। तो ये होते हैं कि सन ड्राइड होके ऐसे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और पूरा ड्राई ऐसे जकड़ जाते हैं, तो शुटकी माछ बोलते हैं। वो बहुत टेस्टी हुआ था। दैट वाज आवर शो स्टॉपर रेसिपी। वो बोला एक निवाला खा के, मैंने बोला नमक ठीक है, तो उस पर तो चीनी नहीं पड़ते हैं, तो बहुत ही बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने जब बोला कुछ खाना दे देंगे, बोलते हैं सिर्फ वो शुटकी माछ दे देना। तो मेरे फ्रीज़र पे और भी है शुटकी माछ, मतलब कच्चा, बिना कुक किए हुए। मैंने बोला वो भी आप थोड़ा ले जाओ। बोलते कौन इतना कुकिंग करे, क्योंकि उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ठीक करके क्लीन ना करो तो खाया नहीं जाते हैं। सिंक पे बर्तन, ये सिंक का बर्तन सारा मुझे उठाना पड़ेगा, उठा के डिशवॉशर करना पड़ेगा। यहाँ पे डिशवॉशर भी भरे हुए हैं, ये सब लेके डिशवॉशर का चीज़ें लेके मुझे कैबिनेट पे देना पड़ेगा। कैबिनेट पे मैं घुसाऊंगी तभी तो सिंक का बर्तन डिशवॉशर पे दे सकती हूँ।
यहाँ पे हस्बैंड का लंच है, राइस और चिकन। ये है वो शुटकी माछ जो शो स्टॉपर है आज का हीरोइन। यहाँ पे सारे लेफ्ट ओवर खाना है। यहाँ पे राइस है जो ऐसे नेट टाइप का होता है ना, झूड़ी बोलते हैं, लोहे का जो नेट टाइप का, जो खाना जिसको देके ऐसे ढक के रखते हैं, फिर खाना ब्रीथ भी कर सकते हैं, एयर सर्कुलेशन भी होते हैं, ऐसे चीज़ों से सब ये सब ढक दिए थे। अब उसके साथ बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे। नहीं तो मैं ये सब खाना, मतलब वो आने से पहले मेरा सब कुछ खाना ख़त्म, सब कुछ कुकिंग ख़त्म हो गए थे। वो आने से पहले हस्बैंड ने सिर्फ वो बेगुनी बोलते हैं उसको बना दिया, और वो आएंगे फिर हम गपशप ना करेंगे, ये सब क्लीन करेंगे तो वो कैसे टिकेगा, फिर उसको भी लगेगा ना अभी जाना चाहिए। ओ अभी उसने थैंक यू भी बोल दिया, और मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो हस्बैंड ऐसे हाथ को ऐसे करके मुझे दिखा रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अभी हाँ हाँ करके चले भी गए, सारा दिन मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। तो उसके सामने ऐसे क्लीन करूँगी, उसको भी लगेगा जाना चाहिए। तो उसको बोला तुम 6-7 बजे तक रुको फिर डिनर करके जाना। बोलता है नहीं, आज तो जो खा लिया फिर कल खाएंगे, आज तो खाएंगे ही नहीं घर जाके। प्लेट्स भी उठाना है। हम लोग चाय पिए थे। इतना खराब सॉरी, इतना खराब हाल नहीं है। मैं ना कुकिंग करते करते फ्रिज का पानी इतना पिया, मेरा गला ख़राब हो गया। फ्रिज का पानी मैं पीती ही नहीं, कभी नहीं पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी मैं कुछ नहीं पीती हूँ। पर इतना गर्मी लग रहा था, एक साथ 2-3-4 कुकिंग एक साथ कर रही हूँ, इधर क्लीन कर रही हूँ। हस्बैंड ने पूरा वैक्यूम किया, सारा कुछ अरेंज किया, मैंने डस्टिंग भी किया, मैंने भी अरेंज किया, दोनों मिलके ही किया। और गेस्ट बाथरूम तो हम लोग अरेंज करके ही अब तो रखते हैं। और मुझे ये मैगज़ीन दिया उसने, देखो ये बंगाली मैगज़ीन है। अच्छा, हमारा ये बंगाली फ्रेंड कोलकाता गए थे एयर इंडिया से, उसको $800 लगा। $800 से उसका हो गया। एयर इंडिया से कोलकाता ऐसे गए, यहाँ पे ऑरलैंडो से दुबई, सॉरी ऑरलैंडो से दिल्ली गए, ऑरलैंडो से दिल्ली गए। और जैसे हमारा तो 1200, 1300, कभी 1500-1600 भी पड़ते हैं। मतलब जब इमरजेंसी होते हैं, 2-3 बार इमरजेंसी के वजह से हम लोग गए, तब तो पर हेड इतना खर्चा पड़ते हैं। मतलब 2 टिकट मिला के तो कितना ही खर्चा पड़ता है टैक्सेस लेके। उसको 800 में मिल गया। 1-1.5 महीना पहले वो गए थे कोलकाता। उसको वो जो बोलते हैं ना हेलमेट जैसे, सामने ग्लास जैसे, वो चीज़ दिया। पीपी सूट नहीं दिया, और मास्क पहनना पड़ेगा। 2-3 बार उसको टेस्ट भी देना पड़ा, नाक के अंदर घुसा के टेस्ट लिया। उसका हैज़र्ड हुआ, पर अच्छा करके घूम के चले आए इधर। वो आज मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के आए थे हमारे घर पे, पर आके वो देख रहे थे कि हम दोनों ने मास्क नहीं पहना, क्योंकि ही इज़ ओके। अभी 1-1.5 महीना पहले वो घूम के चले आए हैं, और वो बहुत बहुत सावधानी से रहते हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। अभी कोई इंडिया जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर सबके अपने अपने ऊपर। कोई तो जैसे हम लोग, हमें नहीं लगता हम इतना जल्दी जल्दी जाएंगे बिना वैक्सीन लिए। अभी ऊपर वाला के ऊपर ही सब कुछ है। तो मेरा संडे बहुत अच्छा गया। अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, सच में मैं बहुत बहुत टायर्ड हूँ। पर हस्बैंड बोल रहे थे कि देखो आज एक इंसान आया, फिर भी इतना गपशप हुआ। बंगाली है ना, और मेरा कॉलेज जहाँ पे था उसका घर भी वहाँ पे था, तो इतना गपशप हुआ। मैं वो और हस्बैंड मिल के इतना बक 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 किया, तो अच्छा लग रहे थे। बोलते हैं कल से फिर हमारा बोरिंग लाइफ शुरू हो जाएगा। अरे लाइफ तो बोरिंग है। आप इंडिया पे रहो, यूएसए पे रहो, कहीं पे भी रहो, सबका लाइफ ही बोरिंग होता है। उसको हैपनिंग करना हमारे हाथ पे है। इसीलिए मैं कभी कभी DIY करती हूँ, घर क्लीन करती हूँ, अच्छा अच्छा कुकिंग करती हूँ, कभी कभी घूमने चली जाती हूँ। इसीलिए अभी ये पैंडेमिक पे तो सब कुछ खराब हो गया।
चलो अभी रखते हैं, टाटा बाय बाय। मेरा छोटा सा संडे वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा मेनू प्लान, मेनू आइडिया कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। आप सभी का मंडे से वीक बहुत अच्छा जाए, पूरा नेक्स्ट संडे तक, वीकेंड तक। और अभी एलेक्सा को पूछती हूँ आप अभी का टाइम कितना है। एलेक्सा, टुडेज टाइम नाउ। It's 7:48 p.m. 7:48 p.m. Alexa, today's date. Alexa, today's date. It's Sunday, March 7th. Sunday, March 7th. देखो, ये जो मेरा ईयररिंग है ना, हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारा एक ही ईयररिंग है, तुम्हें तो मैं खरीद के ही नहीं देता हूँ कुछ, तुम्हारा एक ही ईयररिंग है। अभी इसको ना मैं आज रख दूंगी बाहर, कल मैं उठा के बॉक्स करके बहुत मतलब अंदर पे रख दूंगी, दूसरा कोई ईयररिंग निकालूंगी। सच में मैं यही ईयररिंग पहन पहन के रहती हूँ, अभी चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। ओ जैसे एयर इंडिया पे उसको मास्क पहनना पड़ा, और जब गए थे और जब आए थे, जब मिडल का सीट हुआ ना, दो सीट के मिडल पे जो सीट हुआ, एयर इंडिया का मुझे मालूम नहीं, कभी ट्रैवल नहीं किया, हम एमिरेट से करते हैं, तो मिडल का सीट के लिए उसको एप्रोन टाइप का कुछ पहनना पड़ा। वो बोल रहे थे कि एप्रोन टाइप का कुछ दिया है, और कौन जाने शायद वही पीपीई सूट है, पर बोल रहे थे कि कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है फ्लाइट पे, सभी सबके साथ ऐसे टच कर करके फ्लाइट पे जैसे बैठते हैं ऐसे करके ही आया। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बोल दूँ। तो चलिए अभी फाइनली टाटा बाय बाय।